friends, how are you? Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, we are going to solve different questions for the Bayes theorem, okay, probability chapter and for class 12. Okay, so I think in the last lecture we had solved various questions regarding this Bayes theorem and very interesting questions they were. And in this lecture also we will solve this type of questions but in the advanced level. Okay, so you will solve and I think you will get more and more interest in this lecture because the more practical examples and the more practical activities will be counted in the different questions as well. Okay, so to try to concentrate on this lecture as well. Okay, so just write the first question. Okay, शुरू करते हैं. Just take your pen and paper. Just write it, whatever will be done. Okay, in your note copy. Just write the question. Suppose that 6% of the people with blood group O. Okay, 6% of the people with blood group O okay, just write the question. 6% of the people with blood group O, okay, with blood group O are left-handed, okay, left-handed, and take 10% of those other blood groups, okay, are left-handed, okay, are left-handed. 30% of the people have blood group O, okay, blood group O. If a left-handed person is selected at random, if a left-handed person selected at random, if a left-handed person selected at random, okay, what is the probability that he or she will have blood group O? What is the probability that he or she has blood group O? Okay, so here the question is about the different blood group people. Okay, some of the people have the blood group O and some of them are not. So some left-handed peoples are there. That means those who works, okay, by using their left hand. Okay, so that means left-handed people, just like that. So left-handed people are there with the O group blood and non-O group blood. Okay, left-handed people कुछ भी हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप भी O भी हो सकता है, O के अलावा तो कुछ भी हो सकता है. हर जो है लेफ्ट हैंडेड है ये वो लोग का ये जो है O ग्रुप होगा ब्लड, ऐसा तो कोई श्योरिटी नहीं है. दूसरा ग्रुप भी तो हो सकता है यहाँ पर, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है. सो दैट मीन्स यहाँ पर O ब्लड ग्रुप वाला
कुछ है, नॉन ओ ग्रुप वाला जो पीपल है वो कुछ क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंडेड पीपल्स आर देयर विद ब्लड ग्रुप ओ एंड द नॉन ओ ग्रुप ब्लड, ओके। सो यहां पर इवेंट क्या क्या होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड पीपल्स आर चूजन, ये तो फेवरेबल में चला गया, दैट मींस ये तो ए इवेंट में चला गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि ये जो आपने लेफ्ट हैंडेड पीपल चूज किया है, ही और शी हैज द ब्लड ग्रुप ओ, सो दैट मींस यहां पर दो केसेस बनता है। ओ ग्रुप वाला जो ओ ग्रुप ब्लड जो ग्रुप का है वो E1, और नॉन ओ ग्रुप वाला जो ग्रुप है उसको हम लोग E2 ले लेते हैं, ठीक है। ये दो ही तो पार्ट है ना यहां पर। सो हियर E1 इक्वल्स टू चूजिंग ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप O, है कि नहीं? E2 कैसे समझ में आया, मुझे E1 और E2 यही लेना है, ठीक है। तो यहां पर E1 और E2 अगर मैं ये नहीं लेता हूं तो जो आपने लेफ्ट हैंडेड पर्सन चूज किया है, ओके, लेफ्ट हैंडेड पर्सन चूज किया है, फ्रॉम व्हिच ग्रुप, ओ ग्रुप से किया है या फिर नॉन ओ ग्रुप से किया है, ये तो क्वेश्चन मार्क है कि नहीं। सो दैट मींस ये जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन जो आपने चूज किया है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओ ग्रुप वाला और नॉन ओ ग्रुप वाला, दो ग्रुप है आपके पास, ठीक है। वो दो ग्रुप उसको पकड़ के मैंने E1 और E2 कंसीडर किया है, ठीक है। पहले तो आपको ओ ग्रुप वाला एक साइड, नॉन ओ ग्रुप वाला जो है दूसरे साइड में रखना है, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंडेड पीपल विल बी चूजन, and this choosing of this left-handed people is based on these two sub events, O group, non-O group, okay. So choosing a person with other blood group, O नहीं है but other group होता है, ठीक है। एक्यूरेट हम लोग नहीं जानते। A equals to a left-handed people is chosen, very good। एक लेफ्ट हैंडेड वाला पीपल को, मतलब लेफ्ट हैंडेड पर्सन होगा, पीपल तो नहीं होगा यहां पर, पर्सन, लेफ्ट हैंडेड पर्सन, ही और शी, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, वो हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, हम लोग को लेफ्ट हैंडेड चूज करना है, ठीक है। वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। A left-handed person is chosen, very good। Now this left-handed person, it depends on two sub events, O group वाला, non O group वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि जो जिन लोगों का O group है, those who have this O group, amongst of them 30% people have 30% people are left-handed people, okay। Just you can see the question, 30%, no sorry, ये 6% of the people with blood group O, okay, are left-handed, okay, and 10% of those of other blood groups are left-handed people, ठीक है। Now सबसे पहले आपको तो P of E1 क्या होगा, देखो E1 मतलब क्या है, all the people and all the persons with the blood group O, okay। 30% of the people have blood group O, सीधा क्वेश्चन में बोला गया कि 30% का यहां पर ब्लड ग्रुप O है, तो ऑब्वियसली 70% का क्या होगा, O ब्लड ग्रुप नहीं होगा, दूसरा कुछ ब्लड ग्रुप होगा। सो दैट मीन्स यहां पर P of E1, अच्छा क्वेश्चन ये लिख लो पॉज करके। सो P of E1 तो 30%। As I told you, if you have this percentage sign, this percentage signifies the probability itself, no? So because this percentage, it is considered with respect
to the total number of something. Here the total number of people 100. Out of this 100 people, 30 people have this blood group O. Okay, so 30 by 100. So P of E2. So P of E2 क्या होगा? Obviously ये जितना होगा उसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ठीक है, वो 70% है, तो दैट मीन्स 70 by 100. तो यहां पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, दैट मीन्स 7 by 10 और यहां पर 3 by 10. P of E1 and P of E2. Now P of A by E1. So this A by E1, this part signifies that E1 event is already occurred. Now you are going to choose, you are going to find the probability of A. Okay. So E1 event is already occurred. What does it mean? That choosing a person with blood group O, that means you are choosing, that means you have collected all the O blood group persons. That means you have made a group. Okay, you have made a group of people, those who have this O blood group. आपने एक ग्रुप बनाया, ठीक है. फिर उसके अंदर से आपने एक लेफ्ट हैंडेड पीपल को सिलेक्ट किया है, ठीक है. अब क्वेश्चन में एक बोला गया है, देखो 6% ऑफ द पीपल दोज हु हैव दिस O ब्लड ग्रुप आर लेफ्ट हैंडेड पीपल. दैट मीन्स जिन लोगों का O ब्लड ग्रुप है उनमें से 6% पीपल जो है उन लोगों का लेफ्ट हैंडेड, वो लोग लेफ्ट हैंडेड पीपल है. सो दैट मीन्स ये जो A by E1 है वो डायरेक्टली, कैन आई राइट दिस 6%? I mean to say 6 by 100. That means 3 or is it 50? 3 by 50. Directly percentage तो probability है यहाँ पर P of A by E2 क्या होगा? Now you are choosing a person with the other blood group. O group नहीं है, other blood group है, ready? अच्छा, तो अगर यहाँ पर अदर ब्लड ग्रुप वाला आपको चूज करना है, ठीक है, वहां से आपको लेफ्ट हैंडेड पीपल चूज करना है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी 10% ऑफ द पीपल दोज हु हैव द अदर ब्लड ग्रुप आर लेफ्ट हैंडेड पीपल. दैट मीन्स जो अदर ब्लड ग्रुप वाला है वहां से 10% ओनली लेफ्ट हैंडेड है, बाकी राइट हैंडेड है. तो यहां पर वी शुड नॉट कंसीडर दिस राइट हैंडेड पीपल, छोड़ो उसको. कितना लेफ्ट हैंडेड है? 10% लेफ्ट हैंडेड है जिन लोगों का ब्लड ग्रुप O नहीं है, ठीक है. सो दैट मीन्स E2 इवेंट हम लोगों ने क्या लिया था? E2 इवेंट के यहां पर चूजिंग अ पर्सन विथ अदर ब्लड ग्रुप, दूसरा कोई भी ब्लड ग्रुप. तो E2 इवेंट ऑकर हो गया है. दैट मीन्स अदर ब्लड ग्रुप, मतलब अदर जो ब्लड ग्रुप वाला है उन लोगों को आपने चूज कर लिया है ऑलरेडी. अब वहां से आपको लेफ्ट हैंडेड पीपल चूज करना है, ठीक है. तो अदर ब्लड ग्रुप उनमें से लेफ्ट हैंडेड पीपल कितना है? उसमें बोला गया देखो 10%. 10%. और जब परसेंट हो तब आपको और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे लिखना है 10 by 100. दैट मीन्स ये 1 by 10. नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड हियर? जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जस्ट सी द क्वेश्चन कि यहां पर बोला गया लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम. लेफ्ट हैंडेड पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम. What is the probability that he or she have the blood group O? लेकिन जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन आपने चूज किया है वो O ग्रुप वाला था, वो आपको निकालना है, उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है. दैट मीन्स O ग्रुप वाला है, कौन सा इवेंट है? E1. तो हम लोग को क्या निकालना है? P ऑफ, आपने लेफ्ट हैंडेड पर्सन चूज किया है, चूज करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? कि वो O ग्रुप वाला था. दैट मीन्स E1 by A. सो जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ P E1 by A. दैट मीन्स P of E1, P of A by E1 whole divided by P of E1, P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. So P of E1 मतलब 3 by 10 into P of A by E1 3 by 50, 3 by 50 whole divided by 3 by 10 into 3 by 50 plus
P of E2, P of E2 मतलब 70% है ना, that means 7/10 into 1/10. So just find the answer here. So 9/500 whole divided by 9/500 plus the 7/100. ठीक है, 4 आंसर विल बी 9/44. ये आपका आंसर है फाइनल. ठीक है, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. A man is known to speak the truth. A man is known to speak the truth. A man is known to speak the truth 3 out of 4. ठीक है, speak the truth 3 out of 4. He throws a die and reports that. He throws a die and reports that it is 6. Okay. Find the probability that it is actually 6. Find the probability that it is actually 6. ठीक है. अच्छा, तो यहां पर देखो, a man is known, वो जाना जाता है. ठीक है, to speak the truth, वो सही बोलता है. ठीक है, झूठ नहीं बोलता है. 3 out of 4 टाइम. दैट मीन्स अगर उसने 4 बात बोला, उसमें से 3 बात सच होगा, 1 बात झूठ होगा. तो दैट मीन्स सच बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 out of 4 टाइम्स, 3/4. और झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी 1/4. ठीक है. तो दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स he may that means he can say the truth or he may be lying. Okay, so here is a possibility. Okay, maybe he is telling the truth or not. सही नहीं भी बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पर, झूठ तो बोल रहा है. 4 टाइम अगर वो बात करता है, उसमें से 1 टाइम जो है वो झूठ बोलता है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/4 है झूठ बोलने का. अब जो है उसने एक डाई थ्रो किया है. थ्रो करने के बाद उसने बोला है 6 आया है. दैट मीन्स वो सही भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है. सही भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है. Am I right or not? है? So that means फिर आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालना है कि नहीं, उसने जो बोला है कि 6 आया है, ओरिजिनली 6 आया है. आपने जाके वेरीफाई किया है, हाँ 6 ही आया. दैट मीन्स ही इज टेलिंग द ट्रूथ. वो सही बोल रहा है, वो उसका प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है. तो यहां पर देखो, एक पर्सन है जो सही और दैट मीन्स सच और झूठ का प्रोबेबिलिटी आपको पता है. वो सच बात बोल रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी. झूठ बोल रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अब उसने एक डाई थ्रो किया. डाई थ्रो करने के बाद उसने बोला है कि 6 आया है. 6 नहीं भी तो आ सकता है. अगर उसका टेंडेंसी ये है कि नहीं मैं झूठ बोलूंगा, 6 नहीं आया है, फिर भी मैं तुम्हें बोलूंगा कि 6 आया है. ऐसा कोई होता है ना, जैसे लूडो जब खेलते हो
आपके साथ जो पार्टनर रहता है, जो अपोजिट में रहता है, वो आप थोड़ा बहुत इधर अटेंशन आपका ब्रेक हो गया तो वो मतलब मार के जो है 6 आया करके जो है अपना चाल चल लेता है कि नहीं? तो दैट मीन्स यहाँ पर वो झूठ बोल रहा है कि नहीं? सो दैट मीन्स 6 नहीं आया था, बट वो बोल रहा है मुंह से कि 6 आया है कि नहीं? क्योंकि वो झूठ भी बोलता है ना, प्रोबेबिलिटी तो है झूठ का। सो दैट मीन्स यहां पर 2 केस बनता है, E1 और E2। या तो 6 आया है, 6 ऑकर्स, एंड E2 होगा 6 डजंट ऑकर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे वो क्या सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। अब 6 आया है या फिर 6 नहीं आया है, वो तो हम लोग वेरीफाई करेंगे ना, ठीक है ना? अच्छा, तो यहां पर लिखो, हियर E1 equals to 6 occurs, E2 equals to 6 doesn't occurs, doesn't occur. So P of E1 अगर 6 आया है तो टोटल आउटकम तो 6 है कि नहीं? तो 6 आया, दैट मीन्स 1/6। प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल आउटकम तो 6 होगा, डाई थ्रो करने से टोटल आउटकम कितना होता है? 6, और फेवरेबल में कितना है? 6 आया है, दैट मीन्स 1 आउटकम, सो दैट मीन्स 1/6। सो P ऑफ E2 क्या होगा? तो ऑब्वियसली 6 आया है और 6 नहीं आया है, दैट मीन्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट होगा, 1 - 1/6, दैट इज 5/6। 6 आया है या फिर 6 नहीं आया है, प्रोबेबिलिटी आपको पता हो गया। A इक्वल्स टू, अब A इक्वल्स टू क्या लेना है, मतलब A इवेंट क्या लेना है? He throws a die and reports that it is 6 है? He throws a die and reports that it is 6। मतलब ये 6 वो बोल रहा है कि 6 आया है, इट इज नॉट कंफर्म whether it is 6 or not. Okay, just you need to verify this thing. Okay, just before verifying this outcome, you can't say that the 6 is occurs or 6 doesn't occur. Okay, so that means यहां पर A equals to he throws the die and reports that it is 6. Okay, now you will verify it. Okay, कैसे? देखो, P of A by E1, इसका मतलब क्या है? E1 मतलब क्या है? 6 occurs, 6 occurs मतलब 6 आया है, ठीक है? A मतलब क्या है? यहां पर E1 मतलब है 6 आया है, और वो भी रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है। देखो तो यहां पर एक चीज देखो, E1 क्या है? 6, ओरिजिनली 6 आया है, ठीक है? और A इवेंट क्या है? He throws a die and reports that it is 6, दैट मींस वो भी बोल रहा है कि 6 आया है, ओरिजिनल 6 आया है, और वो भी मुंह से बोल रहा है कि 6 आया है, दैट मींस ही इज टेलिंग द ट्रूथ, है कि नहीं? ओरिजिनल यहां पर 6 आया है और वो भी बोल रहे हैं अपने मुंह से कि 6 आया है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ही इज टेलिंग द ट्रूथ। तो ट्रूथ बोलने का यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 out of 4 टाइम्स, दैट मीन्स 3/4। Am I right? हाँ? फिर P of A by E2 क्या होगा? E2 मतलब यहां पर 6 नहीं आया है, 6 नहीं आया है, बट A इवेंट क्या है? He throws a die and reports that it is 6। ओरिजिनली जो है, ओरिजिनली 6 नहीं आया है डाई में, बट वो मुंह से बोल रहा है कि 6 आया, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है कि नहीं? झूठ बोल रहा है ना, सो दैट मीन्स झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या होगा? 1 by, that means 1 minus 3/4, that is 1/4. Very interesting questions. Okay, so now what you need to find the probability that it is actually 6. That means वो सही बोल रहा है, that means वो मतलब रिपोर्ट भी कर रहा है 6 आया, एंड इट इज एक्चुअली 6, वो सही बोल रहा है,
उसका प्रोबेबिलिटी निकालना। तो सही बोलना का दैट मीन्स P ऑफ, सही बोलना है दैट मीन्स E1 by A। अगेन तो बस निकाल P of E1, P of A by E1, P of E1, P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2। ठीक है, P of E1 into P of दैट मीन्स सब वैल्यूज यहाँ पर ये जो लेक्चर है ठीक तरह से सुनना, एक एक वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा P of E1 क्या होगा 1/6, A by E1 दैट मीन्स 3/4, नीचे क्या होगा, नीचे क्या है P of दैट मीन्स 1/6 into 3/4 प्लस वो 5/6 into 1/4। तो इसका कैलकुलेशन ये 3 2 6 और यहां पर तो कुछ होता नहीं है शायद, तो दैट मीन्स 1/8 by 1/8 plus 5/24 equals to 3/8 will be the final answer. Just calculate it, you will get this 3/8. Okay, very important question. Okay, फिर नेक्स्ट जॉब। इन ए टेस्ट, एक टेस्ट हुआ है, इन अ टेस्ट एंड एग्जामिन आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज। ठीक है, देखो इन ए टेस्ट एंड एग्जामिन, इन ए टेस्ट थर्ड क्वेश्चन, अगर कोई डाउट निकला बोलना, फिर से हम लोग जो जो क्वेश्चंस डाउट हुआ है वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, सो इन ए टेस्ट, in a test and examine either guesses or copies or knows। There are three possibilities are there. The answer to a multiple choice question. Know the answers. Know the answer to a multiple choice question. Multiple choice question. Okay. With 4 options. With 4 options। ठीक है, with 4 options। The probability that he makes a guess, the probability that he makes a guess is 1/3, is 1/3। He copies the answer is 1/6, he copies the answer is 1/6, and the probability that the answer is correct, the probability that the answer is, the probability that his answer is correct, the probability
that his answer is करेक्ट, वो सही आंसर दिया है, ठीक है, ठीक अटेम्प्ट किया, आंसर इज करेक्ट। गिवन दैट he copied, given that he copied, it is 1/8. Then find the probability that he knew the answer. Find the probability that he knew the answer. He knew the answer. वो जानता है आंसर, ठीक है। He knew the answer to the question. Knew the answer to the question and given that he correctly answered it. बहुत बड़ा क्वेश्चन है। So in a test, an examine, what you have done, either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice questions with 4 options. Obviously, in a multiple choice questions, all the answer I think we don't know, okay, and every competitive exam is in the multiple choice formation, okay. So every 4 options used to be given. So in these 4 options, only one option will be true, okay. So sometimes we don't know the accurate answer, and at that time I think we used to guess. We used to guess the answer. The answer may be this, it may be this, it may be this. That means guessing, okay. Or we copy. I think we used to copy, okay, from the another candidate, from the another candidate copy, okay. We used to copy the answer, what he had written, what he has written, just see the answer and just take it, okay. So ये copy का है। And the third है कि you know the answer, you know the answer, so just directly you will take the one option, okay. So if you know the answer, then there is no problem, okay. But if you don't know the answer, then you will guess or you will copy from the another copy, okay. So here, according to this question, just you can see, in a test, an examine either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 options, okay. The probability that he makes the guess is 1/3. He copies the answer is 1/6, and he knows the answer we don't know, okay. Now the probability that his answer is correct, given that he copies, and it is 1/8, okay. अच्छा, यहाँ तक छोड़ो। So here this what are the events here, okay, what are the events here? E1 equals to he guesses the answer, okay. E2 equals to copy from other, and E3 equals to he knows the answer, right. So 3 possibilities are there. So for I think according to the question, for each and every probabilities are given, okay. So just see. So here P of E1, P of E1, P of E1
here P of E1, that means what? He guesses the answer. No. So guess the answer, that means 1 by 3 it is given, I think. P of E2, I think he copies the answer, 1 by 6. And third one, I think E3, he knows the answer. Probability is not given in the question. But here we can find the probability of this P of E3 event. How? Just see. We know that किसी भी इवेंट का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, हम लोग जानते हैं. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? टोटल 1 होता है. वी नो दैट. सो यहां पर 3 ही तो पॉसिबिलिटी है. यहां पर और कुछ क्या पॉसिबिलिटी होगा क्या? इफ यू विल बी गिवन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओनली 3 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर. आइदर यू विल नो द आंसर, आइदर यू विल गेस द आंसर, आइदर यू विल copy the answer. So 3 possibilities are there. So accept these 3 copies. If you have the another options, then it will not be true. But I don't. I think I don't know whether there is any kind of options are left without accept these options which are given in this question. Only 3 cases are there. अगर कोई भी क्वेश्चन हो all time, ये 3 cases ही एप्लीकेबल है. गैस करोगे या फिर कॉपी करोगे या फिर आप लोग जानते हो. उसके अलावा तो और कुछ आई थिंक ऑप्शंस तो नहीं है. सो टोटल प्रोबेबिलिटी, ये तीनों ऑप्शंस लेके ही टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगा इक्वल्स टू 1. उसमें से 2 प्रोबेबिलिटी तो क्वेश्चन में गिवन है, 1 by 3 प्लस 1 by 6. तो P of E3 का निकाल लो. P of E3 का निकाल लो, देखो कितना होता है. सो P of E3 इक्वल्स टू 1 minus 1 by 3 minus 1 by 6. So that means 3 और 6 का तो यहां पर 6 ही होगा. 6 minus 2 minus 1 by 6. So that means 3 by 6 equals to half. है कि नहीं? So that means he knows the answer. इसका प्रोबेबिलिटी है half. ठीक है? He knows the answer. इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाफ. नाउ ए इवेंट यहां पर क्या होगा? ए इवेंट यहां पर क्या होगा कि उसने जो है करेक्टली आंसर किया है. ही आंसर्ड करेक्टली. यही तो है. अब करेक्टली आंसर किया है, वो डिपेंड कर रहा है E1, E2, E3 के ऊपर. हो सकता है तुक्का मार के भी तो सही हो सकता है ना, गैस करके भी सही हो सकता है आंसर, और कॉपी करके भी सही हो सकता है, या फिर आप जानते हो उससे भी सही हो सकता है. दैट मीन्स यू आंसर्ड करेक्टली दिस इवेंट बेस्ड ऑन गेसिंग, कॉपिंग एंड दिस नोइंग, दिस 3 इवेंट्स. ओके. सो ए इवेंट यहां पर आपने करेक्टली आंसर किया है. ओके. नाउ क्वेश्चन में बोला गया क्या? जस्ट यू have given the right answer and given that he copies and it is 1 by 8. अगर उसने कॉपी किया होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. अच्छा, देख लेते हैं. अब जो है now P of A by E1, P of A by E1, ये क्या है? गैस करना. शायद E1 इवेंट क्या है? गैस करना. ठीक है. आपके पास कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है. तो जब आप गैस करेंगे, तो जितना ऑप्शन है उसके अंदर ही तो आप गैस करेंगे, उसके बाहर तो नहीं जाएंगे, है कि नहीं? तो जब आप गैस करेंगे दैट मीन्स E1 मतलब आप गेसिंग कर रहे हैं, और गेसिंग करके जो है आपको आंसर सही मिल गया. यही तो है ना. मतलब ए का मतलब क्या है कि आपने सही आंसर दिया है. E1 मतलब क्या है? आपने गेस किया था. तो दैट मीन्स यू हैव गेट द आंसर एंड फॉर्चुनेटली दैट आंसर इज करेक्ट. ओके. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट? एंड इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. जस्ट यू नीड टू कंसिडर दिस प्रोबेबिलिटी. दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन. गेसिंग का प्रोबेबिलिटी यहां पर गिवन नहीं है. दैट मीन्स करेक्ट आंसर होगा, और वो गेस किया है उसने, उसका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है. सिर्फ कॉपी का दिया हुआ है, देखो 1 by 8, और गेसिंग का भी नहीं है, नो का भी, ही नोज द आंसर, ये भी नहीं है. ठीक है. सो दैट मीन्स A by E1. तो आपके पास
गेसिंग करना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा और आपने सही आंसर दिया है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां पर टोटल पॉसिबिलिटीज 4 है, 4 में से कोई एक सही होगा, 1/4, राइट। P of A by E2, ये तो कॉपीज द आंसर एंड इसका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, ये तो गिवन है। अब P of A by E3, अब बोलो ये क्या है, मुझे बोलो ये A by E3 क्या होगा। इट मीन्स यहां पर E3 क्या है, यू नो द आंसर, यू नो द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा ना, यू नो द आंसर और आंसर सही है, वो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 ही होगा। बाबा तो दोनों घुमा फिरा के तो एक ही है ना, यू नो द आंसर दैट मींस आप जानते हैं उसका आंसर, तो ऑब्वियसली वो करेक्ट ही होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर 1, P of A by E3 ये 1 होगा, क्योंकि यू नो द आंसर और आंसर इज करेक्ट, दोनों घुमा फिरा के एक ही बात, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहां पर फेवरेबल इवेंट और टोटल इवेंट दोनों मतलब ये दोनों सेम हो गए, तो इसलिए यहां पर 1 हो जाएगा, है कि नहीं। सो नाउ अब आपको निकालना क्या है, कि यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन एंड गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट, दैट मीन्स he knew the answer, that means P of E3 by A निकालना है। He correctly answered it and he knew the answer, so that means E3 by A, E3 event ही तो मतलब he knew the answer, so that means P of E3 into P of A by E3 divided by P of E1, P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2, P of E3 into P of A by E3, है कि नहीं। तो just put the values here. P of E3 means what, P of half into P of A by E3, A by E3 कितना होगा, A by E3 यहां पर क्या है 1 divided by P of E1, that means 1/3 into P of A by E1 means 1/4 plus P of E2 means 1/6 into P of A by E2, that means 1/8 plus half into 1. So just calculate it. Half 1/12 plus 1/48 plus 1/2. Just calculate it and write the final answer. And calculate it is the calculation part. Okay. So I have done this calculation in the RAF and just it is plotted directly here. So you need to calculate it in your RAF and just verify it whether it is right or not. Okay, 24/29 is the final answer. Okay, मतलब उसने करेक्ट आंसर किया है और वो क्वेश्चन का आंसर जानता था, ठीक है, वो उसका ही प्रोबेबिलिटी आपने निकाला यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। A doctor is to visit a patient. A doctor is to visit a patient. मतलब एक पेशेंट को विजिट करना है, ठीक है। A doctor is to visit a patient. A doctor is to visit a patient, okay, from the past experience मतलब जो अतीत में आपका जो एक्सपीरियंस है, it is known that the probabilities known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter. Okay, he will come by train, bus,
he will come by train, bus, scooter or any other transport are 3 by 10, 1 by 5, 3 by 10, 1 by 5, 1 by 10 and 2 by 5. Okay, if he comes by other means of transport, then the probability that he will be late, are the probabilities that he will be वो late होगा, he will be late और late होने का probability यहां पर दिया गया है 1 by 4, 1 by 3, 1 by 12, 1 by 4, 1 by 3, 1 by 12. बट चौथा वाला यहाँ पर नहीं दिया गया, यहाँ पर सिर्फ ट्रेन, बस, स्कूटर का दिया गया। अदर ट्रांसपोर्ट के लिए ये लेट होने का चांसेस जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस, स्कूटर रेस्पेक्टिवली, ओके, इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस, स्कूटर रेस्पेक्टिवली, वेरी गुड, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। बट अदर ट्रांसपोर्ट वाला नहीं दिया गया है, उसमें देखना, ठीक है, नोटिस करना। बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स he will not be late. If he will come by other transport, then he will not be late. वो late नहीं होगा, ठीक है। When he arrives, he is late. Late हुआ है वो। When he arrives, he is late. मतलब लेट हुआ है, तो दैट मींस ये श्योर है वो अदर ट्रांसपोर्ट से तो नहीं आया है। आइदर ही केम बाय ट्रेन और बस और ये स्कूटर, दैट्स व्हाई ही वाज लेट। तो he arrives and he is late. What is the probability that he comes by train? What is the probability that he comes by train? ठीक है, very interesting questions. Okay, now here a doctor, he has to visit his patients. Okay, so for that he is coming to hospital and there is a possibility that he may come through train or bus or scooter or by the other transport. We don't know, it may be private vehicle or it may be that it may be, क्या बोल सकते हैं, अदर ट्रांसपोर्ट में दूसरा कुछ भी हो सकता है कि नहीं, जहाज से हो सकता है, बाय शिप, बाय प्लेन हो सकता है कि नहीं। अच्छा, तो यहां पर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन दैट ही केम थ्रू ट्रेन, दैट मीन्स 3/10, बाय बस 1/5, स्कूटर 1/10 एंड बाय अदर ट्रांसपोर्ट 2/5। These are the probabilities. So these four things can be considered as 4 events, E1, E2, E3, E4, because उसने 4 रूट मतलब ऑप्शन में है, तो ये चारों रूट में से कोई एक रूट में से वो आएगा, ठीक है। और यहां पर लेट होना नहीं होना यहां पर डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर,
बस, ट्रेन, ये स्कूटर और अदर ट्रांसपोर्ट। अब आने के बाद ही तो लेट होगा। अब वो मतलब आएगी नहीं, घर पे बैठी रहेगी, तो कहां से ये लेट का प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे? मतलब वो आएगा अब बाय आइदर this train or bus or this scooter and whatever it is. Okay, so here E1, very close. Here E1 come by train. Okay, E2 come by bus, E3 come by scooter. Okay, and E4 come by other transport. Other transport equals to 2 by 5. Okay, so P of E1 equals to 3 by 10, P of E2 equals to 1 by 5, P of E3 equals to 1 by 10, and P of E4 equals to 2 by 5. These are the probabilities. Okay, now he is late. Now these late probabilities are also given. Okay, so A event क्या होगा? He is late. अब लेट वो बस से आया था या फिर ट्रेन से आया था या फिर स्कूटर से आया था या फिर अदर ट्रांसपोर्ट से आया था। 4 पॉसिबिलिटीज यहां पर पैदा हो गया। सो दैट मीन्स यहां पर लिख लो, सो P ऑफ A बाई E1, इसका मतलब वो ट्रेन से आया था। पहला वाला तो ट्रेन ही है कि नहीं? हाँ, ट्रेन से आया था और वो लेट हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 1/4। यही तो गिवन है देखो क्वेश्चन में। P of A by E2, that means what? He came by bus and he is late. That means 1/3. He came by scooter and he is late. है कि नहीं? A by E3, that means 1/12. Okay. And P of A by E4, इसका मतलब क्या है? उसने अदर ट्रांसपोर्ट से आया, मतलब वो अदर ट्रांसपोर्ट से आया था और वो लेट नहीं हुआ है। तो ए तो मतलब यहां पर लेट हुआ है, तो वो तो लेट नहीं हुआ है ना अदर ट्रांसपोर्ट में, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। दैट मीन्स 0, क्योंकि अदर ट्रांसपोर्ट से आने से वो लेट नहीं होगा, क्वेश्चन में बोला गया है। ए इवेंट तो हम लोगों ने क्या लिया है? ही विल बी लेट, है कि नहीं? तो दैट मीन्स दोनों में मैच नहीं है। अगर यहां पर अदर ट्रांसपोर्ट से आए हो तो वो लेट नहीं होगा, बट यहां पर प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालना है तुम्हें? लेट होगा। तो अब लेट नहीं होगा तो मैं लेट होने का प्रोबेबिलिटी क्यों निकालू? इम्पॉसिबल इवेंट 0। इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर 0 होता है ऑलवेज। नाउ यू नीड टू फाइंड दैट ही इज लेट। इट इज कंफर्म दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। अब ट्रेन से आया था, दैट मीन्स E1 by A। E1 by A। Okay, so P of E1 by A, ये निकालना है, बस हो गया। So P of E1 by A, that means P of E1, P of A by E1, P of E1, P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2, ये बहुत बड़ा होगा। P of E3 into P of A by E3 plus P of E4 into P of A by E4. So वैल्यू बिठाओ सबका और आंसर निकालो। P of E1 that means 3 by 10 into A by E1, that means 1/4। तो नीचे तो टोटल होगा, ऊपर तो फेवरेबल इवेंट आता है, और ये क्या होगा? 3 by 10 into 1/4 plus 1/5 into 1/3 plus 1/10 into 1/12 plus 2/5 into 0।
ठीक है, ये वाला पार्ट तो पूरा ही चीज हो गया। सो 3/40 डिवाइड बाई 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120, ठीक है। अब वो हाफ आएगा, आंसर जो है वो हाफ आएगा, हाफ। So these are the questions from the Bayes theorem, and some more questions I think are left from this Bayes theorem, and it will be continued in the next lecture. Okay, because it is the very important chapter. That's why I am trying to provide all the types questions, okay, to you, so that all the questions will be solved and you will get the knowledge. You can gather the knowledge more and more from the lectures, okay, from the solutions as well. Okay, so in this lecture that's enough. Just let's see in the next lecture what will be happened. Okay, so we will solve different questions, Bayes theorem questions, in the actually from the different books. Okay, so thank you very much for joining the classes. Okay, bye and jai.